Where does the Shakti come from? Where does that fire come from? पावर जो शक्ति जो होती है किसी भी काम की वो हमारे अंदर ही होती है और उसमें जेंडर का कोई गेम नहीं है. Whether you're male or you're female, the power for anything is inside you and there is nothing that you cannot achieve. आत्मा की शक्ति, इसीलिए जेंडर की बात नहीं है उसमें. आत्मा की शक्ति है तो कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं. सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, बातों को ख़त्म करने की शक्ति. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा, बट डेफिनेटली आई थिंक इसके रूट्स मेरे चाइल्डहुड से ही हैं एंड फॉर दैट आई वांट टू क्रेडिट माय पेरेंट्स. मेरी मदर का खुद का नाम शक्ति है, पूजा शर्मा. फायर हिम, मेरे भाई के लिए कहते फायर हिम. नो व्हाट डज दैट मीन फायर हिम? व्हाट ही मेंट वाज लाइक लाइक डोंट टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन. जब मैं कहीं जाती भी हूँ तो ऐसे लोग मुझे ऐसे एम्पावरमेंट के लिए ऐसे क्यों समझते हैं? मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसने बस एक रोल किया. The Chirharan, a part of that whole entire thing has been something discussed in history, the impact it has had. ये कोई बाहर वाले नहीं थे, ये उसके अपने सगे संबंधी थे जहाँ पे ये सब हो रहा था. फर्स्ट वुमन जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, सीधा बात की. दुशासन आओ, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो. कम टेस्ट योर पावर. She walked herself up on the pedestal, looks at him, then she kind of connects with Krishna. And she's also not shown holding on to her dupatta and this and that because this is what he's approaching to do to her. But she's not. She's now in complete surrender and just once she says Govind. श्री कृष्ण को अपने साथ रखो. श्री कृष्ण आपको हर टाइम बताते रहेंगे ये राइट है, ये राइट है, तुम बस सुनते जाना उसका. She began her journey in front of the camera as a model and an anchor, long before audiences recognized her as the face of the strength of a woman, both as Mahakali as well as Draupadi. Please welcome Pooja Sharma to this edition of our Think Right podcast. Wonderful to have you here on this podcast, Pooja. And we really look forward to understanding many aspects of the power of a woman through your experiences, both as an individual and through the roles we've played. And of course, to guide us and help us through this entire discussion, we have with us our ever radiant sister, B.K. Shivani. Very warm welcome to you as well. So maybe begin with you, Pooja. It's such a, it's exciting to have someone like you on a podcast, where we can talk about so many different aspects and subjects when it comes to, a modern day young woman, going through media and many other ways through your own life, and then through some of the roles that you have played, which, has inspired so many women across generations, right? Because what we are talking here is sacred texts and historical kind of, events that have shaped both India and, through India, the world, which you have been privileged to be a part of. But take us a little bit through your early days and your journey. How did you get into media in the first place? थैंक यू सर. फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. इनवाइट करने के लिए मैं आपको डबल थैंक यू देना चाहूँगी क्योंकि पहले तो आपने मुझे ऑनर दिया यहाँ पे आके अपने थॉट्स शेयर करने का, एंड दूसरा बिकॉज सिस्टर शिवानी के साथ बैठने का आज मुझे मौका मिल रहा है. जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सिस्टर के काम की फ़ैन रही हूँ ओवर द ईयर्स, और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आज भी सिस्टर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूँगी. सो थैंक यू. एंड आपने कहा कि मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, तो आई बिगिन फ्रॉम माई चाइल्डहुड because I love talking about my childhood. I think some of the best years of my life. I grew up with a lot of love. एक joint family में बड़ी हुई, तो I don't think मुझे father और चाचा का difference पता था क्योंकि सब इतना प्यार करते थे, सब same लगते थे. I was the child जो जाके लोगों से लड़ती थी कि हम 10 कज़न्स हैं और हमसे कहा जाता था कि आपके कितने बहन भाई हैं. टेक्निकली 2 बहन भाई हैं और मैं बोलती थी हम 10 बहन भाई हैं. मेरा भाई भी बोलता था हम 10 बहन भाई हैं. तो हमें समझाया जाता था कि आप 2 बहन भाई हैं, ये कज़न्स हैं, बट वी डिडंट नो द डिफरेंस. वी ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड माई पेरेंट्स मेड मी फील आई एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी मुझे बहुत हेल करते थे. मैं कुछ भी करती थी मुझे बहुत एम्पावर किया जाता था, बोला जाता था मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ. आई एम गुड एट एवरीथिंग. इफ आई वुड ड्रॉ अ लाइन दे वुड से वंडरफुल. इफ आई वुड लाफ दे वुड से वंडरफुल. इफ आई वुड डांस दे वुड से वंडरफुल. सो आई रियली ट्रूली बिलीव दैट समटाइम्स व्हेन जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं एंड द वेगरीज ऑफ लाइफ हिट यू,
तो आपकी मेरी सेफ स्पेस, मेरे वो चाइल्डहुड के मेमोरीज हो जाते हैं. द लव दैट आई ग्रू अप विद, आई कैन जस्ट क्लोज माई आईज, एंड द स्कूल दैट आई वेंट टू, द लव दैट आई रिसीव्ड देयर, द लव दैट आई रिसीव्ड इन माई चाइल्डहुड, वही मुझे नरिश कर देता है फॉर माई लाइफ अहेड. एंड आई ग्रू अप इन अ फैमिली जहाँ एकेडमिक्स पे बहुत एम्फोसिस था. सो आई स्टडीड एंड आई डिड माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. बट कहीं ना कहीं हमेशा से मुझे कैमरा के सामने स्पेसिफिकली एक्टिंग का कीड़ा था. पर वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल लगता था खुद को. मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी पुल बैक नहीं किया. मैंने उठ के उनको कहा कि मुझे ये करना है, उन्होंने बोला जाओ बॉम्बे जाना चले जाओ, ये करना है कर लो. मैं कभी कभी सोचती थी आपको डर नहीं लगता है, पर उनको नहीं लगता था. दे सेड यू नो वी ट्रस्ट यू, हमें कॉन्फिडेंस है कि आप जो करेंगी आपको पता है कि सही और गलत क्या है. मेरे फादर मुझे ये बचपन से बोलते थे. मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे ऐसे पूछता था, पर वो मुझे आके कहते थे. आज मैं ऑफिस में था, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा अब तो पूजा हाई स्कूल में आ गई है तो कैसे उसका स्टडीज़ का कैसे होगा. तो मेरे फादर बोलते थे पूजा शर्मा नोज, उसे सब पता है. तो आई डोंट नो दैट वाज हिज वे ऑफ टीचिंग मी, पर मुझे लगता था कि हाँ मुझे सब पता है. सो आई थिंक दैट ऑल्सो मेड श्योर दैट मैंने हमेशा प्रायोरिटाइज किया राइट डिसीजंस के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मुझे खींच नहीं रहा था, कोई मुझे पुल डाउन नहीं कर रहा था. माई पेरेंट्स, माई फैमिली वाज द विंड बीनीथ माई विंग्स. एंड देन एज आई सेड मुझे एक्टर बनना था, तो मैं आना चाहती थी यहाँ पे बॉम्बे. बट उससे पहले ही मेरे लिए एक्टिंग से भी पहले एंकरिंग केम नेचुरली टू मी, विच इज़ योर जॉब. दैट केम नेचुरली टू मी, ईजी टू मी. एंड मैंने दिल्ली में भी एंकरिंग से शुरू किया, और फिर मैं बॉम्बे भी एंकरिंग की वजह से ही मूव इन किया. एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली वन थिंग लेड टू द अदर, एंड देन द वर्क दैट जिसके बारे में आपने बात की. So one thing led to the other. So what led to this role? Was it a coincidence? Is it something that you aspired to do? ये कैसे? And आज you know when you walk somewhere, you are viewed very differently, I'm sure, by many in India. तो वो coincidence थी या किस तरह से वो पहला जो रोल मिला आपको? मिक्स था. आई थिंक कोइंसिडेंस तो मुझे लगता है कि आप के साथ लाइफ में वो ही होता है जो आप डिटर्मिन करते हैं, जो आप चाहते हैं. अगर आप उस डायरेक्शन में काम करते हैं तो सूनर और लेटर वो घटना आपके साथ घटती है. मगर हाँ, हम उसे ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते कि वो ऐसे ही घटेगी या इस समय पे घटेगी या यही होगा. तो ऐसे ही हुआ. मुझे एक्टर बनना था. मेरा पहला एक्सपीरियंस कैमरा के सामने एज एन एंकर हुआ. फिर मुझे एड्स मिले, और ऐसे नहीं कि मिले, ऐसे नहीं क्योंकि घर लेके आया. आई हैड टू गो फॉर ऑडिशंस, आई हैड टू डू टन्स ऑफ ऑडिशंस, और वो सब अपने आप में बहुत कलरफुल एक्सपीरियंसेस थे. मुझे लगता है आई कैन राइट अ बुक ऑन दोज एक्सपीरियंसेस. बट स्पेसिफिकली द रोल्स दैट आई एम, इफ आई मे से सो, नोन फॉर, जिससे ऑडियंस से मेरा कनेक्ट बना, वो था महाभारत. और वहाँ मैं यही कहूँगी सर कि इन रोल्स ने मुझे चुन लिया. आई जस्ट शोड द विलिंगनेस टू वॉन्ट टू बी एन एक्टर. मैंने सोचा कि अब मुझे ये करना है. जो भी मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोच रही थी, ऐसा नहीं वैसे नहीं, मैंने बस एक दिन डिसीजन लिया कि मैं करना चाहती हूँ, और ये रोल मेरे सामने आ गया, और 3 दिनों के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया. एंड देन बिकॉज ऑफ द्रौपदी आई गॉट महाकाली, एंड दैट्स हाउ इट वाज. द रोल्स चोज मी. रोल्स चोज मी होता है. अनुभव उनका है ना, तो उनसे पूछना पड़ेगा. मेरे साथ तो हुआ है डेफिनेटली. क्यों संकल्प तो रखा था ना. संकल्प रखा था. रोल्स चोज मी मीन्स एवरी रोल रिक्वायर्स अ संस्कार. कोई भी रोल है उसके लिए एक संस्कार चाहिए, एक पर्सनालिटी चाहिए, जिससे आप उस रोल को बहुत कन्विक्शन से खुद भी करेंगे, और दूसरों के ऊपर भी लगेगा कि ये द्रौपदी बोल रही है, ये पूजा नहीं बोल रही है. तो वो कन्विक्शन तभी आएगा जब आपके अंदर भी कुछ संस्कार है. कुछ रोल्स सिर्फ एक्टिंग की तरह नहीं किए जा सकते, बिकॉज दोज रोल्स आर नॉट जस्ट ड्रामा, दे आर हिस्ट्री. They are a role which generations have grown up talking, reading, studying, learning. They are not a role. They are not a role. वो हमारे परिवार का हिस्सा है. हर घर में द्रौपदी है, हर घर में काली देवी है, हर घर में पार्वती. वो हमारे घर का हिस्सा है. So you cannot just play a role. वो उस तरह का रोल नहीं है जो बाकी हम रोल्स प्ले कर रहे हैं. So role chose me मतलब she is not saying it, and she probably doesn't believe it also. She has something in it for which that role will come to her. And वो फिर रोल में दिख गया कि वो चीज़ थी, तो उन्होंने सिलेक्ट किया उस हिसाब से. तो वो शक्ति तो इनके अंदर बहुत है, इसीलिए रोल चोज. इसलिए वो सब शक्ति वाले रोल आते हैं आपके पास. शक्ति वाले Draupadi was made out of Agni, no? And fire. तो है आप में अग्नि.
अग्नि तो सर हम सब में ही होती है No, आप अग्नि के बारे में काफी बात, I mean, जी you know, because it's got so many implications, right? नो अग्नि, एक्चुअली यू आर राइट हाँ. बिकॉज मेरे प्रोड्यूसर ने मुझसे ये बात कही थी. वो लोग 5 साल से द्रौपदी ढूंढ रहे थे एंड देन मैंने पूछा कि व्हाट वाज द क्लिंचर एंड ही सेड मैं ढूंढ रहा था एक लड़की विद फायर इन हर आईज. आई स्टिल डोंट नो व्हाट दैट मींस बट यस देयर वाज दैट एलिमेंट ऑफ फायर. श्योर. आपके आंखों में पता है क्या दिखाई देता है? जो आपकी स्थिति होती है वो आंखों में दिखाई देती है. अगर हमारे अंदर अहंकार है तो वो भी आंखों में दिखाई देता है. प्यार भी किसी के लिए तो आंखों में दिखाई देता है. दर्द है तो भी आंखों में दिखाई देता है. तो शक्ति है तो भी आंखों में दिखाई देती है. तो उनको आंखों में वो दिखाई दी शक्ति. दैट इज व्हाई द रोल चोज यू. सो रोल विल ओनली गो टू दैट पर्सन जिसके पास वो है शक्ति. सो द रोल चोज यू. And then Kali is fierce, but she's also compassionate and protective. So, with addition to the Agni or the fierceness, you also have those other traits in you. Did you ये सब आपको समझा जब when you were going through these these roles? वेरी गुड क्वेश्चन सर. उस समय बिल्कुल नहीं समझा बिकॉज मेरी अप्रोच बहुत स्टकाटो थी. मुझे लगा आई एम एन एक्टर और मुझे ये रोल मिला है और मुझे ये काम करना है. आप मुझसे उस समय पूछते या अभी कुछ समय तक पहले भी पूछते तो मैं आपसे कहती मेरा प्रोसेस बहुत विसरल है. कुछ अंदर से घटता है, निकलता है, ये अपने आप हो जाता है. मैं बस प्रोफेशनल रहती हूँ और ये हो जाता है. पर जैसा अभी दीदी ने भी हमारे साथ शेयर किया कि वो कोई शक्ति है. तो जो दूसरा शो है महाकाली, उस शो का पूरा थीम ही यही था. उस शो की अगर आप देखेंगे तो उस शो में ऐसे दिखाया गया कि पार्वती हैं, वो हैं देवी पर वो एम्पावर्ड नहीं है. वो एक पार्वती वाज अ नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन बीइंग लाइक अस. तो वो पूरी जर्नी ही उस शो में ये है कि उन्हें कैसे समझ में आता है. वो एक्चुअली महाकाली ढूंढती रहती हैं सब और लोगों में कि आप वो देवी हैं जो हमें बचाएंगी, आप वो हैं, आप वो हैं. एंड देन उनको बाद में समझ में आता है कि वो शक्ति तो मेरे अंदर ही है. तो ये दोनों शोज की जर्नी में मुझे जो आपने कहा दीदी वो थीम पूरा समझ में आया. और तब आई थिंक हमने उस शो के ज़रिए ऑडियंस को ये समझाया और मैंने भी डेफिनेटली ये बात समझी कि जो पावर, जो शक्ति जो होती है किसी भी काम की, वो हमारे अंदर ही होती है और उसमें जेंडर का कोई गेम नहीं है. whether you're male or you're female, the power for anything is inside you and there is nothing that you cannot achieve. And that's how it is. And I think your father reminded you of that Very through his important life. role of empowerment. Very role. बहुत important Because role. he said when you're fearless, only then can you really start unlocking जो आप में होता है. So maybe the early days of your life, would you just set you up for this? अभी वैसे कुछ लगता है? And Yes, other I things would. from your early days that you think could have helped you become the person you are today? अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि क्यों मेरे फादर एक यही बात मुझे हमेशा कहते रहते थे. एंड यू नो शी वाज, इट्स सो फनी. वो ऐसे भी एक बात कहा करते थे कि बिकॉज वो मेरा नाम पूरा लिया करते थे एंड ही यूज्ड टू से पूजा शर्मा फायर हिम. मेरे भाई के लिए ही कहते थे फायर हिम. Now, what does that mean, fire him? What he meant was like, don't take nonsense from anyone. आप इतने strong होने चाहिए कि whatever it takes, be able to handle the situation. तो अब मुझे लगता है कि अब ये fiery roles और ये empowerment वाले roles, मैं कभी-कभी सोचती थी कि जब मैं कहीं जाती भी हूँ तो ऐसे लोग मुझे ऐसे empowerment के लिए ऐसे क्यों समझते हैं. मैं तो एक normal इंसान हूँ जिसने बस एक रोल किया. बट आपसे बात करते हुए मुझे ये सब थ्रेड्स अभी अपनी लाइफ के समझ में आ रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं बचपन से वो था. आई वांटेड टू बी एन एक्टर वेरी क्वाइटली. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा. बट डेफिनेटली आई थिंक इसके रूट्स मेरे चाइल्डहुड से ही हैं एंड फॉर दैट आई वांट टू क्रेडिट माय पेरेंट्स. मेरी मदर का खुद का नाम शक्ति है तो शायद ये भी कोई कनेक्शन होगा. And when you fired him, you were playing. शब्द बोले, जो सारे शब्द बोले पेरेंट्स ने और बचपन से बोले, गर्भ से भी होगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स की पर्सनालिटी ट्रेट में भी वो होगा. पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, जो शब्द बोले जा रहे हैं, and of course the soul must have come with some sanskars also. पर जब वो बीज में होती है शक्ति और पानी भी शक्ति वाला मिले तो फिर वो फल निकलना बहुत इजी है वो वाला. तो हर बार जब उन्होंने आपको वो शब्द बोले ना ऑफ एम्पावरमेंट, आपके ऑरा में वो एनर्जी बिल्डअप होने लग जाती. तो दैट इज व्हाई वी से कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे बात करते हैं उससे बच्चे का व्यक्तित्व बन जाता है. कई बार हम कहते हैं ये मत करो, तुमसे नहीं हो सकता, तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, तुम्हारे से तो टूट ही जाता है, तुम तो ये नहीं काम करो, तुम्हारे से तो ये होगा भी नहीं. आप तो पेरेंट विल से लेकिन हमें पता है उनसे नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनसे नहीं होगा. लेकिन वो बार बार बोलने से
वो शब्द हैं जो उच्चारण होते जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं फिर सिद्धि लाते हैं। तो वो आपके शब्द जो है ना पापा के, वो आपके एनर्जी फील्ड में, तो आपसे पहले आपका ऑरा वॉक इन करता है और एनीबडी, तो आपके ऑरा में यही शक्ति है। When you see young women, same with Shakti, right? Today, women, I strongly believe, is a stronger species. I mean, compared to gender, compared to men, right? Because women, I mean, by and large, right, women go through a lot more physically, emotionally, even otherwise. So, where does that Shakti come from? Where does that fire come from? What आपने कभी सोचा है? And maybe then we will turn to her to explain. मैंने तो सर लाइफ से यही सीखा है कि शक्ति आपके अंदर है और उसका कोई अगेन एज आई सेड, उसका जेंडर पे कोई एम्फेसिस नहीं है, वेदर यू आर मेल और यू आर फीमेल, वो शक्ति आपके अंदर है और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये कुछ सोचने के लिए नहीं है कि मुझ में है और इनमें नहीं है, उसमें नहीं है। डिफरेंस जो आता है वो सिर्फ हमारी अवेयरनेस पे आता है कि हम कितना उसको हार्नेस कर पा रहे हैं, हम कितने अवेयर हैं उस बात को लेकर और हम कितना उसको हार्नेस कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। पर वो जो शक्ति है वो तो 100% मेरा मानना है इनीट है, एंड दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ शक्ति। शक्ति आत्मा की शक्ति है, इसीलिए जेंडर की बात नहीं है उसमें। आत्मा की शक्ति है तो कितनी सारी शक्तियां होती हैं। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, बातों को खत्म करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, दूसरे को सहयोग करने की शक्ति। महाकाली सिंबलाइजेस सामना करने की शक्ति, कि किसी गलत को सहन करना है लेकिन गलत नहीं सहन करना है, कब सहन करना है कब नहीं सहन करना है, दैट डिसर्निंग पावर। तो ये शक्तियां हर आत्मा की हैं। इट्स नॉट लाइक शी सो ब्यूटिफुली सेड, इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमन, इट इज द पावर ऑफ द सोल। बट व्हाई डू वी कीप सेइंग कि वुमन हैज दिस शक्ति मोर? बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। सो आई द सोल कैन बी बॉर्न इन अ मैन कॉस्ट्यूम और इन अ वुमन कॉस्ट्यूम। पर जैसे ही आप एक नारी के कॉस्ट्यूम में पैदा होते हैं, पहले समय पे वो कंडीशनिंग वैसे हो जाती थी। आपको घर संभालना है, आपको सहन करना है, आपको चुप रहना है, आपको क्षमा करना है, आपको सबको समेट के इकट्ठे लेना है, आपको सबको जोड़ना है। सो अ लॉट ऑफ नर्चरिंग दैट वाज बीइंग टॉट टू अ गर्ल। द मेल वाज बीइंग टॉट द प्रोवाइडर संस्कार। आपको बाहर जाना है, आपको निडर होना है, आपको ये करके लाना है। सो बिकॉज दैट वाज द रोल, दैट टाइम देयर वर टू डिफरेंट रोल्स, कि द वुमन वाज प्लेइंग द नर्चरर रोल एंड द मैन वाज प्लेइंग द प्रोवाइडर रोल। इसीलिए वो इनेटली वो संस्कार की कंडीशनिंग होती है आफ्टर द गर्ल इज बोर्न इनटू द फैमिली और अ बॉय इज बोर्न इनटू द फैमिली। अब तो बोथ आर प्रोवाइडर्स, सो बोथ नीड टू बी नर्चरर्स ऑल्सो। प्रोवाइडर के लिए अलग शक्ति चाहिए होती है, नर्चरिंग के लिए अलग शक्ति चाहिए होती है। हर एक के पास दोनों होनी चाहिए। But the child grows in the womb. That nurturing, that power of a woman is That's different right. from So what a man. because she's a woman, she's taught all that. So she automatically. So that she has to still carry forward, right, in her own way. But the sanskar is in both. It's not that the sanskar is in a woman only, because the sanskar is of a soul. Today you're in a male body, okay? 50 years back you could have been in a woman body. आपके पास वो संस्कार थे. When you were in a woman body, you must have given birth to a child. Right. तो आपके पास वो संस्कार थे, लेकिन जब आप एक नया शरीर लेते हैं, फिर आपको जिस तरह से कंडीशनिंग की जाती है, तो आपको बोलेगा आपको सहन नहीं करना, आपको बोलना है, आपको खड़े होना है, आपको नहीं चुप रहना है। लड़की को सिखाएंगे आप चुप रहना, आपको घर को जोड़ के रखना। तो ऑटोमेटिकली आपके कुछ संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और कुछ संस्कार डोमेंट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रोल यू प्ले। लाइक इवन इन प्रोफेशन, हम जो रोल प्ले करते हैं, हमारे कुछ ना कुछ संस्कारों की कंडीशनिंग होगी ना, आपको ये करना है, यूर अ लीडर, लीडरशिप संस्कार हैज टू बी दैट वे, तो आपका लीडरशिप संस्कार इमर्ज हो जाएगा। इट्स ओनली दैट, बट टुडे बोथ आर प्लेइंग ऑल द रोल्स, इसीलिए बोथ have to emerge all the powers. You can't say this one will do this and this one will do this. Both have to do everything, and so both have to emerge all the powers. Man and woman both have to nurture children. Yeah. Now I think in that Both have to nurture. society is, because that is, I think, what you're saying, the evolution in society. But that's okay. But both should emerge the sanskars also. Sanskars, yeah. No. And I think as you played all these roles, puja ki ye sab alag, especially you, like we started with, say, the Draupadi role. Through that role, there were must be so many incidents in that journey
that are impactful. But of course, I think that the Cheer Haran, a part of that whole entire thing has been something discussed in history, the impact it has had in so many ways. When you were like, just personally doing that role, what was going through your mind उस समय? जैसा मैंने आपको पहले बताया सर, मेरी अप्रोच तो बहुत स्टैकाटो थी. एक्टिंग पे ही थी. I thought I'm an actor, I have a role. So I have to here also, as always, give due credit to the writers of our show because ये जो सीन था, ये एक बहुत ही डिप्लोरेबल मोमेंट है इन आवर हिस्ट्री कि ऐसा कुछ हुआ एक वुमन के साथ इन फ्रंट ऑफ हर किथ एंड किन. ये कोई बाहर वाले नहीं थे, ये उसके अपने सगे संबंधी थे जहाँ पे ये सब हो रहा था. तो ये सिचुएशन तो बहुत डिप्लोरेबल है. बट हमारे राइटर्स ने जिस तरह से इसे इंटरप्रेट किया, वो उसमें द्रौपदी को बिल्कुल भी उसका उनका जो वैंटेज पॉइंट था वो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ट्राइंग मोमेंट, बट वो बेचारा मोमेंट नहीं था. शी इमर्जेस एज अ वेरी वेरी एम्पावर्ड पर्सन, एंड आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो जिस तरह से हिस्ट्री में आज स्पेशली आज की जनरेशन जिस तरह से द्रौपदी को देख रही है और आइडलाइज कर रही है, वो इस वजह से भी है क्योंकि इन आवर हिस्ट्री, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग दीदी, कि आई थिंक इट ऑलमोस्ट द्रौपदी अपीयर्स लाइक द फर्स्ट वुमन जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, सीधा बात की. जो उनके साथ किया जा रहा था वो इतना गलत था, बट वो उसको शायद रोक भी नहीं पा रही थी, शायद सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, बट शी स्टूड अप एंड शी क्वेश्चनड एंड शी सेड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज नॉट राइट. एंड बहुत सारे और टेक्निकल क्वेश्चंस भी उन्होंने उसमें उठाए कि जब आप दाव पे लगा चुके थे तो आपको हक नहीं था, एंड देन हाउ कैन यू ऑल वॉच एंड ऑल ऑफ दैट. I think today's generation also connects with that major aspect of Draupadi's personality कि ऐसे सिचुएशन में तुम शायद अपने आप को सिर्फ बचाने की कोशिश करेंगे. उस मोमेंट में, ऐसे मोमेंट में अपने अंदर से स्ट्रेंथ निकाल पाना when everyone else that who you hope कि आपके लिए खड़े होंगे has let you down, you don't let yourself down. I mean, how can you feel bechara in that moment? I only felt supremely empowered in the moment, and also the way they decided to shoot, because it's Cheer Haran, so her dupatta has to go. But in the way we shot, we eventually showed that the men on the in the sabha, they lose their clothes and their jewelry, and then they're running for cover. So it became a funny moment in that sense also. But it was a very very empowering moment for me, and I genuinely feel blessed that I got to portray that character, and also the response that I get from the audience, whether it is male or female. It's like everyone is like, this teaches us that in one way or the other, एक ना एक तरीके से हम सब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जब हम लेट डाउन फील करते हैं बाय अदर पीपल, एंड हम एक ही जो उम्मीद रहती है कि कोई मेरे लिए बोले, आप अपने लिए बोलिए. एंड आई थिंक इन दैट एंटायर नैरेटिव इस वजह से ही द्रौपदी हीरो बन के निकलती है. And that's the beauty about these historical kind of, whatever you would say, not only episodes, the incidents which we talk of. क्योंकि उसमें से everybody is looking at it from their vantage point, from their life journey, and seeing what would it mean in them. But धर्म और अधर्म, की जो line होती है वो बिल्कुल blur होती है in this. So when you look at it from that angle, how do you see people actually looking at, from say your vantage point, how would you look at that episode, for example? See, spirituality teaches us to internalize it all, है ना, कि आपको उसको सिर्फ एक एपिसोड, हिस्ट्री, एक इंसिडेंट, एक कहानी नहीं, वो हमें सिखाया गया था अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए. स्क्रिप्चर्स जब लिखे जाते हैं, दे आर रिटन विद वेरी पावरफुल इंटेंशन, और वो इंटेंशन ये है कि उस समय जो समाज जिस स्थिति में होता है उसको कुछ सिखाने के लिए है, ताकि हर एक उसमें से अपने अनुसार वो सीखेगा. जैसे जैसे समय बीता, वो जो शिक्षा है वो अभी भी उतनी ही पावरफुल है, लेकिन समय बदल रहा है, तो समय अनुसार हमें उसमें से और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है. तो जब हम कहते हैं धर्म और अधर्म की लाइन बहुत ब्लर हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा तो अब हुई है वो, और वो धर्म और अधर्म हमारे अंदर चल रहा है सारा दिन, और वो लाइन बहुत ब्लर है क्योंकि हमें ही आजकल पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, कि बहुत सारी चीज़ें जो आत्मा के लिए गलत है, वी आर नॉट सेइंग गलत बाय व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टू डिसाइड,
गलत बाय सोल पावर उसमें से कम हो रही है या सोल पावर बढ़ रही है, आत्मा की शक्ति घट रही है या आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। तो आज हम ही बहुत सारी चीजों को जो आत्मा की शक्ति घटाती हैं। तो चीरहरण मतलब क्या, कि आप आत्मा की प्योरिटी को खत्म कर रहे हैं। आप आत्मा की प्योरिटी को खत्म कर रहे हैं। और आत्मा की प्योरिटी कैसे खत्म हो रही है, क्योंकि आप अधर्म के संस्कारों को यूज कर रहे हैं। तो द होल थिंग वाज कि धर्म को अधर्म के ऊपर जीत पानी थी, लेकिन वो सीन हमें क्या सिखा रहा था कि अधर्म जीत रहा था। तो जब अधर्म जीतता है तो आत्मा की प्योरिटी की शक्ति खत्म होने लगती है। तो उस समय हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। टुडे वी ब्लेम द वर्ल्ड, इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसे हो गई, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हो गया, वो ऐसा कर रहा था तो मुझे ऐसा हो गया। कोई और जिम्मेवार नहीं है। आपको अपनी प्योरिटी, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर की जो धर्म के संस्कार है उनको जागृत करना पड़ेगा। तो हर क्षण आत्मा के संस्कारों में अधर्म पर धर्म को जीतना है। ये हम सीखते हैं कि आपको अपने पावरफुल संस्कारों से अपने कमजोर संस्कार के ऊपर जीत पाना है। वो जो आप चल रहा है, तो वो कुरुक्षेत्र हमारे अंदर चल रहा है, वो हमारे अंदर चल रहा है। लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन जीत रहा है, कि कौन जीत रहा है। तो आजकल तो बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए अनहेल्दी है इंटरनली, उनको हमने नॉर्मल बोल दिया, फिर उसको समाज ने इंडोर्स भी कर दिया और सबने कहा दिस इज द वे टू लिव, यही राइट है। तो फिर हमने अधर्म को जीतना दिया, पर उसका कॉन्सिक्वेंस हमारी लाइफ में आता है कि हमारी प्योरिटी घटती जाती है। सो इट्स अ जर्नी फॉर एवरी सोल। हर एक को ये चेक करना है। सिर्फ आप सीन को देखकर या स्क्रिप्चर को पढ़ के उसकी महिमा कर ली, दैट्स नॉट इनफ। वो महिमा के लिए नहीं बना था, वो सीखने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए, अपने संस्कारों पर वर्क करने के लिए लिखा गया था। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दोस सीड्स। And therefore the victory of dharma over adharma, which is there, like Draupadi was probably the reason why the war happened in the first place, right? In some way, power of women. Like even today in society, we are seeing wars, we're seeing so many things, and let's keep gender apart, but there is always something that is triggering larger conflict, right? बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं, आज वो पेज तो हम देख ही रहे हैं कि uncertainty in the world, war in the world, it's all increasing at a very rapid pace. So who is the who in this? No, You know, that war is different and this was very different. yeah, no, so I'm just saying if we were to bring it to today's times, अगर हम आज के दिन की बात करें, तो how ये जो वॉर हमें सिखाता है ना, ये यहाँ के वॉर की बात है। ये हमें यहाँ जीतने के लिए सिखा रहा है। हम इसको ये वाले जो वॉर सृष्टि पर अभी हो रहे हैं उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। इसलिए ये वॉर हमें सिखाता है श्री कृष्ण को अपने साथ रखो। श्री कृष्ण आपको हर टाइम बताते रहेंगे ये राइट है, ये राइट है, तुम बस सुनते जाना उसका। मतलब भगवान की शिक्षा को अपने साथ रखो। वो आपको बता रहे हैं, वो आपके साथी हैं। गॉड इज योर कंपेनियन, वो आपका साथी है, वो शिक्षा दे रहा है, वो राय दे रहे हैं, आप लेते जाओ। तो जो आप युद्ध लड़ोगे अपने अंदर, अपने संस्कारों में, अगर आप वो शिक्षा और श्रीमत को लेके वो युद्ध को लड़ते जाओगे, आपकी जीत है। और वो जीत के लिए किसने पुकारा? द्रौपदी। द्रौपदी मतलब द प्योरिटी, जिसकी प्योरिटी उतारी गई थी, तो वो प्योरिटी उठी। एंड प्योर, द सोल सेज आई वांट टू गो बैक टू बीइंग दैट प्योर पावरफुल सेल्फ आई एम। देन यू नीड दैट गाइडेंस so that you are able to win over your own weaknesses, even अगर आपके आसपास सारे उसी को राइट बोलकर चल रहे हैं। तो मतलब पीयर प्रेशर जो भी आप जिस पर भी रखो, बोलो बट ये लोग भी चुप रहे उस टाइम भले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर का धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसकी लाइन ब्लर नहीं है, उसकी लाइन बहुत क्लियर है, लेकिन वो लाइन को देखना है। लेकिन क्योंकि बाकी सब चुप हैं तो हम भी हार जाए नहीं। सो दैट्स व्हाई द्रौपदी इज दैट वेरी पावरफुल कैरेक्टर, दैट पावरफुल रोल हु डिड नॉट गेट influenced by what everybody, she still stood for the right. So she's not the cause of the war, she stood for the right. She actually became responsible for everyone to shift towards the right. Otherwise everyone was part of the, she is technically the catalyst of the dharma. Yeah, उस समय exactly. तो इतने बड़े बड़े ये दिग्गज थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांडव, सब लोग
सब धर्म जानते हुए, धर्म ज्ञानी होते हुए अधर्म की तरफ झुक चुके थे. And our sister said she was the first person who stood up and spoke about the dharma. And that triggered That so triggered, much. Yeah. And then I think सबसे important lesson जो चीरहरण का ही है और जो द्रौपदी की लाइफ का है, जो कि हम सबके लिए बहुत relevant है, is the surrender. कि जब ये situation पूरा अपने crescendo पे पहुंचती है, and there's a point in the show जब द्रौपदी बोलती है कि आप सब चुप कर जाएं, आप सब लोग मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे, मेरा रक्षण अब ईश्वर करेंगे. And then she looks at दुशासन and says, दुशासन आओ, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो, come test your power. And she walks herself up on the pedestal. That's why I said it was a very empowering sequence. She, in our narrative, she walked herself up on the pedestal, looks at him, then she kind of connects with Krishna. And she's also not shown holding on to her dupatta and this and that, because this is what he's approaching to do to her. But she's not. She's now in complete surrender. And just once she says, Govind, and stops. And this is that surrender in your life. जब life में भी, you know, the vagaries of life और difficulties या कुछ भी situation आपको खा रही होती है और सब आपको कहते हैं कि आप surrender करो, वो surrender complete, जितना complete होता है उतनी आपकी protection ज़्यादा strong होती है, क्योंकि जब तक द्रौपदी ने surrender नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं आई. तो प्रोटेक्शन भी सरेंडर पे ही आई. और वो जो आपने कहा ना, दुपट्टा भी नहीं पकड़ती है, बिकॉज उसको फुल फेथ है. उसको फुल फेथ है ना, तो वो फेथ में फिर उसको अब अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज व्हाट वी लर्न हाउ टू लिव इन लाइफ, कि आप सरेंडर करो और फिर वो पावर आपका ध्यान रखेगी. लेकिन बिकॉज आपने राइट पर खड़े होने की हिम्मत रखी, तब वो पावर आपका ध्यान रखेगी. नॉट कि आप ही वल्नरेबल हो गए, आप ही कमजोर हो गए और बोले आप आकर मुझे बचाओ. नो. तो परमात्मा हमें बहुत एक सुंदर चीज सिखाते हैं. हिम्मत का पहला कदम आपका, पदम गुणा मदद फिर उसके बाद मेरी, बट हिम्मत का पहला कदम आपका चाहिए. And it should be on the सही, हाँ, वो on the right path. तो वो हिम्मत का एक कदम तो उठता है ना, फिर उसके बाद वो सरेंडर. So much we get to learn even in just one. I mean, you can actually learn how to live life. Yeah. पूरी तरह से, सिर्फ एक सीन के अंदर सब कुछ सीख सकते. You know, also thinking about how good the scene will come out when you're wearing your actress role, you go there and you surrender. That did you do? आपको वो आया उस समय? That's exactly what I did. मुझे और कुछ नहीं पता. मुझे मेरे lines, as I said, I was professional about it. I knew my lines like the back of my hand. But I didn't know anything else. कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? I don't know. I think I walked into it with a lot of confidence again. Where was that confidence coming from? I don't know. Maybe my parents, my childhood, or someone was taking care of me. Krishna. Krishna. And honestly, you know, पहले मुझे ये सब चीजें बोलना बड़ा अजीब लगता था कि यार कृष्णा आए और देवी ने प्रोटेक्ट किया, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे है. But I think 10 or 12 years down the line, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो होता है. मुझे एक बार दीदी ने भी कहा था कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे तो आप याद रखना कि आपको इन रोल्स के लिए चूज किया गया था. तो तब मैं रेजोनेट नहीं कर पाती थी इन चीज़ों से, बट अब मुझे लगता है कि वो पावर होती हैं, और वो पावर जैसे द्रौपदी ने भी जब सरेंडर किया, जब याद किया, तभी आई. आप सरेंडर करेंगे, आप बिलीव करेंगे, तो आपको भी हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रोवाइडेड आप भी ऑन द राइट पाथ हो. ये ना सबके जर्नी में कहीं ना कहीं आता है, पर मोर ऑफन देन नॉट हम देखते हैं लेटर देन सूनर. सरेंडर किया, पावर मिली, क्योंकि धर्म पर खड़ी होती है. So sometimes today we doing all sorts of things and हम कहते हैं हमने तो भगवान से मदद मांगी, हमको तो मदद नहीं मिली. तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करो अधर्म का और फिर बोलो भगवान आप मेरा ध्यान रखना. नो. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ हिम्मत वही है कि पहले खुद वो अकेले. द्रौपदी कहाँ खड़ी थी? सबके बीच, एवरीबडी ऑन वन साइड एंड शी अलोन ऑन वन साइड. शी कुड हैव आल्सो बिकम द विक्टिम, शी कुड हैव बीन द विक्टिम, बट वो सबके बीच में वो एक अकेला शक्ति, मतलब पीयर प्रेशर का इन्फ्लुएंस ने धर्म की साइड पे खड़े हुए, फिर सरेंडर किया, तो प्रोटेक्शन. Because this is also one more thing we don't understand in our relationship with God. मैंने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, मैंने भगवान को कहा ये ठीक करो. ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं है. आपका पहला संस्कार आपका शक्ति का होना चाहिए, हिम्मत का होना चाहिए और धर्म की साइड पे होना चाहिए. मतलब यू हैव टू बी ऑन द राइट टू बी एबल टू कनेक्ट टू द हाईएस्ट एनर्जी.
आप एक हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आपकी अपनी एनर्जी हाई होनी चाहिए, मतलब आप धर्म की साइड पर होने चाहिए। उसमें सीन में ये क्यों नहीं दिखाया उन्होंने कि जो 5 पांडव हैं वो श्री कृष्ण को बुला लेते उस टाइम, क्यों नहीं बुला पाए? क्योंकि वो खुद उस समय उस क्षण के लिए धर्म की साइड पे खड़े नहीं थे। अब आगे की जर्नी में जब वो धर्म की साइड पे खड़ा होना शुरू करते हैं तो फिर श्री कृष्ण उनको ज्वाइन करके उनको टू लर्न सो मच डीपर विद दैट, बिकॉज सम पीपल जैसे मैंने भगवान से मांगा उन्हें धर्म की साइड पे पहले खड़े पर रहो। वही होता है ना कि जो सही धर्म है वो भी समझ में कैसे आएगा, यू नो, बिकॉज द होल अर्जुना एंड कृष्णा, द होल गीता इज अबाउट दैट, राइट? कि जो सही है, यू नो, यू बिलीव एट दैट पॉइंट कि सही है और आपने सरेंडर कर दिया, और अगर हुआ, अगर नहीं हुआ देन यू आर नॉट, मे बी अनदर वे टू थिंक इज कि हमने तो सरेंडर कर दिया पर हम ठीक नहीं, तो वो कहीं अंदर से वो आवाज आती है, हर एक को पता होता जब है। धर्म नहीं होगा ना सरेंडर हो भी नहीं सकेगा। हाँ, आप प्लीड करके मांग सकते हैं, सरेंडर इज नॉट प्लीडिंग एंड आस्किंग, सरेंडर मीन्स कंप्लीट letting go. फेथ Yeah. that I surrender to you. That is faith and surrender, not just asking. Asking तो हम सब मांग सकते हैं भगवान से, but surrender requires lot of power. Surrender हो नहीं सकता इस तरह से। Surrender means आप literally आपको कुछ डर नहीं है अब इसके बाद। You fear nothing. You fear losing nothing. आप इतने 100% निश्चय के साथ परमात्मा को सरेंडर करते हैं, तो वो ही कर सकेगा जो उस समय राइट पर खड़ा है। दूसरा तो कर ही नहीं सकता, उसके पास शक्ति नहीं होगी सरेंडर करने की। और vulnerable also ना, with लाइफ में तो ऐसी vulnerable मतलब सिचुएशन आती weakness है, पर ही तो हाँ, आए ना। जब आती है वो सिचुएशन which you know कि you can't control, and then you surrender completely, because then you know, this is like in Draupadi's case, I think she was at that point where there was nothing, she surrendered completely, and you know, the Lord took over, right? So I think But whatever that surrendered extra with power, हाँ, but she surrendered with with power. So I think She that did is not a- surrender surrender with in not pain. keeping a solution in mind. हम लोग Yeah. normally surrender Yeah. करते हैं कि आप ऐसे मेरा होना ये काम चाहिए। करवा हाँ, देना, ऐसा इसको होना ऐसे चाहिए। कर देना। ये द्रौपदी didn't say That is send me a another- sari. Yeah. Maybe she thought in her head कि इनको अकल दे देना, हाँ, पर उन्होंने बोला नहीं, इनको भी अकल नहीं दूंगा. See what I do. हाँ। You know, so it's surrender is when you stop ascertaining the path कि ये ही होना ये चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए. So it's like this is my goal or this is my helplessness, or take me out of this situation in whatever now you think right. Are you I able succumb do to your that wisdom. now? Yes. Yeah. Yes, I can now say that, you know, after many years of my show with remaining that girl. ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक show किया. I can say that. I think life gets really beautiful when you start living with surrender, and surrender has been a big addition to my life, and I'm very happy that it is. More than anything else, it has shaped you, and I think that is that. And the Mahakali role, that now it's exciting because this one role did it. What about Mahakali's role? How was that different? What were those emotions or values that brought in differently? You know, honestly for me, महाकाली भी द्रौपदी की वजह से ही आया था, क्योंकि प्रोड्यूसर ने सोचा कि इन्होंने द्रौपदी में ऐसा किया तो ये फिर महाकाली भी कर पाएंगी. इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग इट अ फ्यू नॉचेस अबव. बट मेरे लिए वो मैंने अग्री तब किया जब मुझे एक स्टोरी दिखी, जब हमने पार्वती को दिखाया कि पार्वती इज दिस गॉडेस और कुछ एक प्रॉब्लम आई है, डीमंस आए हैं और पार्वती अब ढूंढ रही हैं कि कोई तो एक शक्ति है. उन्होंने सपने में देखा था कि एक शक्ति है जो आती है और सबको प्रोटेक्ट करती है. So now she's going to every Devi, she's going to everyone, Vishnu, Shiva, everyone, and saying, protect me, protect us, protect us, protect us. And they're all letting her go through her journey. And then we see in the show that she realizes कि actually वो सारी शक्ति तो आपके अपने अंदर ही है. और मुझे ये अपने लाइफ का रिकरेंट थीम लगता है. तो जब मैंने वो स्क्रिप्ट में पढ़ा तो मुझे लगा ये तो मैं हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ. और डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, जैसे दीदी ने बताया कि वो एक आप कथा को कथा की तरह भी पढ़ सकते हैं, बट एक रिकरेंट थीम जो उस शो से मैंने लिया और जो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस ले, और आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऑडियंस ने भी समझा, वो यही था कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, और वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज़ की जो शक्ति है ना वो आप ही के अंदर है. आपकी प्रॉब्लम्स भी आपके बाहर नहीं है, उसका कॉज भी आपके अंदर ही है और उसको ओवरकम करने का तरीका भी आपके अंदर ही है. एंड दैट्स हाउ इट वाज. Yeah, everything happens only within you. Even today, I am seeing you. Where am I seeing you? I am seeing you within me, right? In my eyes. Yes, that's So what's life में wonderful. सब चीज जो आप बोल रहे हैं हमारे अंदर ही होती है, and most people look for everything outside.
and thinking that we are controlling. I mean, if you see, all our time is spent controlling everybody outside without focusing on this. And I think ये जो अंदरूनी शक्ति जो बोलते हैं ना, the inner power which you talk from Mahakali and the surrender from Draupadi, I think are two very strong, values that can help anybody, shape and live a better life. Today's world, what we have done, we are blaming the outer world for how we are feeling inside. है ना? तो कुछ भी दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, we're not realizing कि ये मेरी कमजोरी है और मेरे पास शक्ति है इसको ठीक करने की। हम उंगली किसी ना किसी बात पर बाहर रखकर, because world also conditioned us by that. आप खुश हैं क्योंकि ये हुआ, आप दुखी हैं क्योंकि ये हुआ, तो हमने फिर ऑटोमेटिकली अपनी पावर को हम खुद यूज करना बंद कर देते हैं। That's why the whole learning is कि पार्वती जी को जागृत होना था कि शक्ति बाहर नहीं, जो शक्ति को आप ढूंढ रहे थे हर जगह पर, वो आपके अंदर है। बट दिस इज फॉर एवरीवन, नो, नाउ टू अंडरस्टैंड कि जो भी शक्ति आप ढूंढ रहे हैं, आप खुशी ढूंढ रहे हैं, आप प्यार ढूंढ रहे हैं, आप जो भी चीज ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है। और इसीलिए जब आप कमजोर फील कर रहे हैं तो उसकी उंगली बाहर नहीं रहता, क्योंकि फिर आप शक्ति भी बाहर ही ढूंढेंगे, सोल्यूशन भी बाहर ही ढूंढेंगे, और आप हमेशा बाहर की दुनिया को, लोगों को, सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि जब ये ठीक हो जाएंगे देन आई विल बी पावरफुल। बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी पावरफुल, कोई कमजोर नहीं होना चाहता, लेकिन आप उसके लिए बाहर परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। इनर पावर इज इनर परफेक्शन। आप जितना वो पावर को इमर्ज करते हैं, आज लोग कहते हैं मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों चुप रख, हर बार मैं सहन करूं। तो हमने सहन शक्ति, विच इज सच अ ब्यूटिफुल पावर, हमने उसको ऐसे बोल बोल के उसको एक कमजोरी बना दिया कि जो कमजोर लोग होते हैं ना वो सहन करते हैं। नो, इट इज पावर टू अडेप्ट, इट इज पावर टू एडजस्ट। जैसे पूजा ने कहा कि हम 10 लोग एक घर में रहते थे, क्या 10 लोग ऐसे ही रह सकते हैं घर में? आज 2 लोग नहीं रह पा रहे घर में इकट्ठे। तो 10 लोग क्यों रह रहे थे? क्योंकि वो बहुत नेचुरली सहन कर पा रहे थे। सहन मतलब डिफरेंट ही होंगे ना, अगर इतने सारे भाई बहन हैं तो एक जैसे तो हो नहीं सकते, सब डिफरेंस है, लेकिन वो सहन शक्ति नेचुरल हुआ करती थी। इट वॉज नॉट स्पेन कि तुमने क्यों सहन किया, तुम चुप चुप रही। टुडे द वर्ल्ड टीचर्स लाइक दैट। आई सी पेरेंट्स टेलिंग देयर डॉटर्स, तुम क्यों सहन कर रही हो, तुम क्यों चुप रही। इट्स नॉट अ वीकनेस, ये वीकनेस नहीं है। अगर आपको 2 लोगों को इकट्ठे रहना है तो किसी चीज में एक को चुप करना होगा। हमने कहा लेकिन हर बार क्यों मैं चुप करूं? हाँ तो कोई बात नहीं, आप दूसरे को भी सिखाओ कि चुप करो, लेकिन जो चुप कर रहा था उसको तो मत सिखाओ कि तुम क्यों चुप रही। तो अब तो दोनों ही नहीं चुप हो रहे कर, इसीलिए तो हुआ। पहले एक जना भी चुप होता था तो शादी चल रही थी, रिश्ते चल रहे थे। आपको दूसरे को भी सिखाना था कि आप भी चुप रहो। हमने ऑपोजिट किया, जो चुप हो रहा था हमने कहा आप क्यों चुप हुए। सो वी सेइंग ओके, आई डोंट वांट टू लिव टुगेदर। शक्ति है, इट इज नॉट अ वीकनेस। तो धर्म अधर्म जो ब्लर है ना, वो ये है कि हमें ये नहीं पता स्ट्रेंथ कौन सी चीज है और वीकनेस कौन सी चीज। तो हम वीकनेस को ही स्ट्रेंथ मानते हैं। मैं तो नहीं चुप रही, मेरे पीपल से व्हाई शुड आई कीप क्वाइट, व्हाई शुड आई कीप क्वाइट, आई आल्सो स्पोक। अनएथिकल है तो स्पीक। किसी का सबको संस्कार, चुप करो, सहन करो, क्रॉस कर दो उसको। पर सहन करने से अंदर दर्द नहीं होता, सहन करने से और पावर बढ़ती है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सहन करना, वी लुक्ड एट सहन करना लाइक एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज नॉट सहन कर। पावर टू अडेप्ट, पावर टू एडजस्ट विद द अदर पर्सन, सच का, दीज आर पावर्स। हम क्योंकि ये शक्तियों को नहीं यूज कर रहे हैं आज, तो हमारी इनर पावर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। एंड लुक वेयर वी आर हेडिंग बिकॉज ऑफ दैट। कहाँ जा रहे? सो वी नीड टू गो बैक टू इमर्जिंग दोज पावर्स अगेन एंड कॉलिंग देम पावर, नॉट कॉलिंग देम अ वीकनेस। वो तो शक्ति है ना हमारे अंदर, वो कमजोरी नहीं। Or what you said, this living with the family, Of course. living with a joint family, जो भारत की Yes. जो That was tradition power, है, वो भी power थी। and there's so many powers, जो आप सही बोल रहे हैं। सहन के साथ कितने बहुत। चीजों, your decisions that you make, collaborative power, and that is what propels you in life, whether you are at work, कहाँ भी हो, वो जो You आप could get along with so many you can people, get no? along with Because you different get types along of with 10 people. people You in the adjust. house. Many people आज बोलते हैं, why should I adjust? What you're saying, why should you not? Because you've never done that in your childhood, so you never need to do it, or it's a new thing for you to do. Yeah. And anything that you have to do new takes that much more effort, Right. from both sides. So I think one thing about Pooja, you probably adjusted well everywhere after that. How Yes, is your yes, relationship with your rest of your cousins today?
As I said, it's value system वही है ना. हाँ. It's very how should I put it? I mean, of course अब इतना समझ तो आ गया है कि हाँ. हम 2 भाई बहन हैं और हम हाँ. बाकी सब cousins हाँ. हैं and all that. But again, the bonding that you feel, the warmth that you feel, the connection that you feel. और I also personally feel कि जैसे हम meditation की बात करते हैं, कभी कभी मैं सिर्फ अपने उस ancestral home के बारे में आंखें बंद करके सोचती हूँ. I just like walk through the various rooms and it feels therapeutic. Yeah. आप जब बोल रहे थे कि joint family के ये आपको फ़ायदे होते हैं, तो फ़ायदे कुछ ये भी होती हैं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और शायद लाइफ इतनी कंड्यूसिव नहीं होती है, तो वो वापस जाके सिर्फ उस प्यार के बारे में सोच के ऑटोमेटिकली इतना नरिश हो जाते हैं that it's beautiful, and I wish it on everyone, on Yeah. every child. You know, that kind of love, that kind of nourishment, that kind of togetherness. It's beautiful. Yeah, you know, I have 2 daughters and my brother has a daughter and a son, and 4 of them, because they've all grown up together. Exactly, like मेरे इतने भाई है, मेरी ये बहन है, मेरा वो. Everyone talks as one. Then you're right, somewhere as parents, you know, when we are discussing or we are doing, you know, we create that, okay, you all are still one, but that innocence जो होती है, जो बचपन की जो innocence है, as you get more exposed in life, goes away. और आपने कहा था, you know, we were talking of purity, Yeah. right? Because purity is that one value of, say, Draupadi, purity of fire, purity. That purity diminishes when innocence kind of goes away, Yeah. right? So I think if you can stay innocent, I'm presuming, And purity powerful. can stay. Yeah. Yes. Innocent and powerful enables you to retain your purity. People look at innocence as a weakness. Weakness, It yeah. is not. Yeah. It is not. आप एक बच्चे को देखो, Yeah. बच्चा कितना innocent लगता है. Innocent मतलब वो egoless है. No, therefore you like every child you You see. have like every Kabhi, child yeah, because वो child बहुत attractive लगता है, but उस child में क्या attractive लगता है, उसकी purity. और purity क्या है, उसके अंदर अभी ego की layers नहीं आई है, मैं ये हूँ. अब वो बच्चे की photos आप देखते जाना. As a baby, 1 साल का बच्चा, फिर 2 साल का बच्चा, फिर 5 साल का बच्चा, फिर 8 साल का बच्चा, आपको वो layers उसके चेहरे पे दिखाई देंगे. Go back and see your photo. कितनी purity हमारे अंदर होती है. Because हमारे को कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा कोई बड़ा नहीं है, मैं फला. वो बच्चा अपने घर के स्टाफ को भी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है. उसकी कॉन्शियसनेस में ये नहीं है कि ये मेरे घर का स्टाफ है. वो तो शॉप में किसी स्ट्रेंजर के साथ भी उतने ही प्यार से देख रहा होता है. लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो सीखता है, नहीं ये बाहर वाले हैं, ये घर वाले हैं, ये विच इज इम्पोर्टेंट. लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, बट ईगो ऑफ हु आई एम जब बढ़ता गया तो हमारी प्योरिटी ऑटोमेटिकली फिर. But when you talk of basically innocence, Purity. the purity, you know, the childlike curiosity, जो भी हम कहते हैं In उसे. spirituality we say the first quality of the soul is purity. And purity means egoless. That is purity. Egoless. Soul conscious. आपको जो आपने अचीव किया उसका अहंकार नहीं है. तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है जितने लेयर्स बनाए थे उस एक एक लेयर को क्या करना है, उतारना है वापस. तो वो सारे लेयर्स उतारनी है. तब आप यू विल कम बैक टू जस्ट हु यू आर and not what you make yourself to believe कि I am all this. Because जब I am role conscious, role means whatever role I'm playing, then I also look at you as a role. I'm religion conscious, I look at the other person through religion. And because of that हम सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऊंचे बड़े दूर हो जाते हैं. Purity means मैं आत्मा, आप आत्मा, we are all one family. When we can have that consciousness for everybody, तो वो पवित्रता जब धर्म आएगी तो बाकी सब प्यार, शांति, शक्ति सब कुछ आ जाएगा. इट कम्स फ्रॉम प्योरिटी. तो अगर सतयुग के देवी देवताओं को देखो तो देवी देवताओं के चेहरे पे प्योरिटी है. आज सिर्फ उनकी चेहरा तो अभी हम रियल में नहीं देख सकते, उनकी मूर्ति को देखो, वो मूर्ति को देखकर प्योरिटी फील होती है. तो वो जब एक्चुअल में होंगे तो कितनी प्योरिटी होगी. तो वो प्योरिटी क्या थी, उस समय भी एक राजा था, एक प्रजा थी, एक साहूकार था. रोल्स तो सारे थे, बट दे डिडंट लिव रोल कॉन्शियसनेस, दे लिव्ड सोल कॉन्शियसनेस. वी नीड टू लर्न दैट. रोल अलग अलग प्ले करने हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस, फिर हमारी प्योरिटी वापस आती जाएगी. And I think with Pooja, when they see her in that role, it triggers that purity of soul in other people. Because when you must be going out, people must be coming to you and
you know, see you as Mahakali. वो होता होगा. How do you deal with that? I don't really look like my screen avatars अच्छा, so because they don't उनका make look out? थोड़ा सा different है, हाँ. तो वो तो नहीं होता है. But I पर जिनको पता होगा कि हाँ definitely वो तो वो हो जाता है. But I think वही समझना बहुत ज़रूरी होता है कि you know I'm just portraying a character. मैं तो वही बार-बार कह रही हूँ, वही purity और वही शक्ति तो आपके अंदर भी है. But I feel also with purity at an individual level, purity is also about there not being much of a difference in, or rather no difference in what you are on the inside and what you are on the outside. You know, holding something else within and saying something else on the outside. जैसे sister भी सच्चाई, सफाई, हाँ ऑथेंटिसिटी ना, प्योरिटी होगी तो ऑथेंट. आपके पास कुछ छुपाने के लिए होगा नहीं ना. दाग लगाए नहीं है तो आपके पास छुपाने के लिए नहीं होगा. तो जितना जितना हम दाग को साफ करते जाएंगे, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होगा. आप अकेले में भी वैसे होंगे जैसे आप सबके सामने हैं. ये धीरे धीरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ प्योरिटी. अभी हम अकेले में कुछ और होते हैं, सबके सामने कुछ और होते हैं, स्टेज पे होते हैं तो कुछ और होते हैं. दीज आर स्टिल लेयर्स ऑफ ईगो. तो ये एक एक लेयर जब उतरता जाएगा तो वो प्योरिटी. Yeah, and complete alignment between what you think, what you say, and do. What you do. You know, that whole ट्रांसपेरेंसी हो गया ना. seamlessly, प्योर हो गए तो transparency. ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे. लेयर्स होंगे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है. सो वी नो यू बट आई स्टिल डोंट नो यू बिकॉज बहुत कुछ छुपा हुआ है. दैट इज वेयर दैट लाइन कम्स. तो वो प्योरिटी. And when you're doing that within, I mean, you know, not the purity is not visible. Is that right? Because you said, so somebody's thinking something, doing something. When you look at that person, you will, that energy will not be the same, right? No, it will not. It will not. So you know sometimes you feel कि आप किसी से बात कर रहे हो, you'll say, I don't know whether I can trust her. क्यों आती है ये लाइन आपके अंदर? Is it your problem or is it that person? No, you can feel two vibrations coming from there. है ना? तो वाइब्रेशंस आ रही होती है ना. कोई सोच कुछ और रहा होता है, बोल कुछ और रहा होता है. And then you also have a valid point. कभी कभी हमारा अपना फिल्टर भी होता है. जब हमारा खुद का फिल्टर भी क्लीन नहीं है तो हमें लग रहा है कि मुझे इनसे अच्छी वाइब नहीं आ रही, पर वो क्या पता डुअलिटी की वाइब आपकी खुद की है. Correct. उस समय ऐसे लग रहा है. जब भी आपको किसी और से वाइब ठीक नहीं आ रही, पहले अपनी चेक करो, हम तो ठीक हैं. फिर जब वो वाइब आएगी और then you can. Very true. Because trust is such an important part of letting go, surrender. You know, people to people. वही है. एक बार वो आ गया and you have faith in that, everything else falls into place. तो कई बार ये होता है ना लोगों के साथ कि धोखा खाया कहीं. हाँ, correct. किसी पे बहुत विश्वास किया, लेट डाउन हो गए, लेट डाउन फील. फिर उनको तो बहुत डर लगता है ट्रस्ट करने में. और इसलिए ट्रस्ट करने में डर लगता है कि नॉट बिकॉज द अदर पर्सन इज राइट और रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन. मुझे फिर से चोट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि पहले ही मेरे को 10 दिन लग गए ठीक होने में. आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन. सो इट्स रियली नॉट अबाउट द अदर पर्सन. इट्स जस्ट माय फियर ऑफ गोइंग थ्रू पेन अगेन. दैट्स व्हाई इट इज बेटर नॉट टू ट्रस्ट. ना ट्रस्ट करेंगे, ना चोट लगेगी, ना दर्द होगा, ये सब होगा ही नहीं. ट्रस्ट नहीं करो मतलब. एंड पीपल ऑल्सो आजकल ऐसे सिखाते हैं ना, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सब पे. यू नो व्हाट कंडीशनिंग ऑल्सो कीप्स डूइंग. तो ट्रस्ट का मीनिंग है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, बट I'm not trust in the sense I don't want you to be my way. वैसा नहीं होना. You be your way. And अगर आप कुछ ऐसा करते भी हैं which is not what I thought would be, मुझे चोट नहीं लगेगी, इतनी पावर अपने पास होनी चाहिए. फिर आप हर एक को ट्रस्ट कर सकते हैं. जब आपने अपना इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग बना दिया. सो लेट्स से सपोज आई से आई नो हर हाउ शी इज, बट अब मेरा फीलिंग गुड इफ इट बिकम्स डिपेंडेंट ऑन हाउ शी इज. Tomorrow if I see some other aspect of her, or tomorrow she does something which is not my way to me, फिर I will say she broke my trust. It is not she broke my trust. She is her way. लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं थी. I was dependent कि you have to be this way for me to feel fine. और जब आपने कुछ और कर दिया तो मुझे दर्द हो गया. पर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शक्ति की नहीं ली. मैंने ब्लेम उन पर डाल दिया एंड मैंने कहा she broke my trust. Now I'm not going to trust people. It is not, trust is not about other people. It's all about your inner work that's going on. जब आपको दर्द कम होगा, चोट लगनी बंद होगी, आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं. Even if they do something which is not, it's all about them. It didn't create any wound here. तो आपको ट्रस्ट करने से कोई डर नहीं लगा. Trust is a high vibrational energy. तो जब आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, आपके अंदर से अच्छी एनर्जी क्रिएट करिए. जब हम किसी को डाउट करते हैं, हमारे अंदर ही लोअर एनर्जी क्रिएट हो रही है. तो अपनी एम्पावरमेंट के लिए trust everyone. Yeah, you know, and that in the practical world, you're right. In the practical world, if you ask me today,
the word that is most key is trust. Everything around is happening mistrust. अभी हम फिल्मों में भी देखते हैं कि ये मेरा most trusted person था. You saw everything was right. The person did the right thing, said the right thing. पर end में जाके समझता है कि this person was the, you know, the fixer or the one who was the actual criminal, right? पूरी फिल्म में you're literally guessing who is that villain, right? And then because the intent was wrong. उस इंसान में एक ही अलग जो था, उनका जो इंटेंट था शुरू से ही ये था कि I'm going to either, you know, person who get assassinated or चोरी होती है, जो भी होता है, वो intent होता है. Now that intent is of some other person whose speech and action is reflecting something else. Your intent, speech, action is aligned. You see that person and you trust that person, and there's still a difference that happens. You know, today if you see in the world, it is largely driven by that, and that intent also comes with ego. So I think all of these get intertwined, but it is more complicated than जो हम बात करें. So I think all that one can do is keep yourself in that state. I'll give you a filmy reference for it. There was a scene in which जो भी वो सीन था उसमें ऐसा था कि the boy is now going to make something of himself कि कुछ बनूंगा और हीरोइन से आके फिर शादी करूंगा. फिर वो जाते जाते ना वो हीरोइन के फादर को बोलता है, सर मैं अपने हिस्से की ईमानदारी रखूंगा, आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखिएगा. So to me that's a landmark dialogue. I think in any equation, in any kind of equation, even in this setup, all I can do is take care of मेरे हिस्से की ईमानदारी और दूसरे की ईमानदारी फिर उसके कर्मा पे. Correct. हाँ, लेकिन इसीलिए दूसरा रखे ना रखे, फिर हमें अपनी ईमानदारी या अपना ट्रस्ट फैक्टर तो नहीं छोड़ना है ना. लेके तो उससे क्या होता है, हमने लोगों पे ट्रस्ट करना कम किया, उसमें उनका नुकसान नहीं, हमारा नुकसान हुआ ना, हमारा नुकसान हुआ. तो ट्रस्ट एक शक्ति है, विश्वास की शक्ति, वो एक शक्ति है. तो वो हम कहते हैं डोंट ट्रस्ट पीपल, ऐसे बोल बोल के हम अपनी ही शक्ति को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. Trust is power and trust empowers other people. अगर आप किसी, what did her father do to her? He trusted her. He said, you want to go to Bombay? You go to Bombay. That trust was empowerment. What she does with her trust is her now karma. Parent did their karma of trusting. Trust became her power. Some children do something जिससे पेरेंट को लगता है मैंने आप पर विश्वास किया, आपने ये तोड़ दिया. But your trust was only power. उस बच्चे ने आगे क्या कर्म किया वो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसी बच्चे ने कहीं किया उसकी वजह से आप अपने बच्चों को भी ट्रस्ट करना बंद कर दो तो वो डिसएम्पावरमेंट है. तो ट्रस्ट इज पावर फॉर द वन हु ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिकम्स पावर टू हुम यू ट्रस्ट. वो शक्ति है. शक्ति, so सहन की शक्ति, to विश्वास की शक्ति, yes, they all shaktis. to all the shaktis, and that is what, you know, I think Pooja represents. आज के जीवन में आपको कहाँ लगा कि कुछ अप्लाई हुआ, कुछ भी, if it's not very personal. When we say ancient wisdom for modern civilization, कि कुछ भी कैसे अप्लाई होता है. मुझे अपने दोनों शोज, दोनों कैरेक्टर्स के बीच में भी एक रिकरेंट थीम यही लगा सिस्टर, जो मैंने आई थिंक अब काफ़ी बार वो बात शेयर भी कर दी है ऑलरेडी, कि दैट पावर इज विद इन एंड आई फील लाइफ इज इनसाइड आउट. कुछ भी बाहर नहीं है, सब आपके अंदर है. किसी anything that we see as a problem, as a problematic person, problematic situation, my dream that I cannot achieve, this thing that I can't do, or this thing or anything else, उसका जो solution है ना वो आपके अंदर है. ये मैं शायद हमेशा कर नहीं पाऊँ, पर मैं कहीं ना कहीं innately समझ चुकी हूँ. हमारी learning तो है ना, definitely deep learning. You know, we watch sometimes, we read, but वो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, and then we go back to being who we are. तो वो सुनना, पढ़ना, देखना इज फॉर कुछ उसमें से एक. जैसे हम कहते हैं इस पॉडकास्ट में कुछ एक भी लिया और उसके अंदर एक भी आपके अंदर कुछ एक बार भी शिफ्ट हुआ तो आपकी शक्ति बढ़ी. इवन इफ यू डिड इट ओनली वंस, क्योंकि आपने एक कर्म फिर सही किया, आपके अंदर वो शक्ति बढ़ी. वो शक्ति आपसे अगली बार भी, मतलब शक्ति बढ़ती कैसे? बाय ब्रिंगिंग इट इनटू एक्शन. आप एक बार सहन करते हैं, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है. आप एक बार चुप रहते हैं, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है. अगली बार आपके लिए वो करना इजी हो जाता है, उसके बाद अगली बार और इजी हो जाता है. उसके बाद पता ही नहीं चलता कि सहन किया. अच्छा ये सहन किया था, लोग कहते हैं आपने सहन किया, क्या सहन किया? यू विल नॉट कम टू नो बिकॉज दैट शक्ति इज नाउ गॉन इनटू योर संस्कार. इट्स ऑटो मोड नाउ. It's auto mode. So at least every time when we learn something,
कुछ एक चीज लेनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, देन इट बिकम्स पावर. एक बार विश्वास किया तो विश्वास की शक्ति आ जाती है. आई थिंक वो एक दुनिया में everyone should try that once and see how it will change. A wonderful conversation. But before we let you go, we have this mindful minute. You know, I'm going to ask you some questions more related to you and some, you know, short thoughts from you on some of those questions. So one word that Sisters not doing that? No, that's only for you. we used to have a lot of those mindful. All our minutes are mindful, Yeah. you know. So we want to get the audiences to know you a little better. You know. Sure. So one word that defines you when the camera is off. One quality that describes you when the camera is off is just that. Camera is off मतलब not about the role, about you. One quality about you. वो सारी qualities तो role की होती है ना, उसको जो आप portray कर रहे हैं. Your one quality. Resilient. हाँ, देखो, शक्ति. वो भी तो शक्ति है. Resilience is शक्ति. Same thing, you know. Later, after a long day, लंबे दिन के बाद, you know, what excites you the most after that? You've worked for a whole day. You've come back. What do you look forward to? I look forward to my day. I enjoy my days. It's not like I don't look forward to the end of the day. I believe you should enjoy your day so much that And then you're not reconnect for the next day. Yeah, absolutely. So, you know, Draupadi spoke the truth with fire. What's the one truth or value you never compromise on? There would be two. One would be integrity and the other would be sincerity. जब गुस्सा आता है तो what helps you cool the fire? A variety of things. Different things on different days. कभी अपनी मम्मा के साथ फ़ोन पे बात करके, कभी साइलेंस में बैठ के, कभी किसी अच्छे मेंटोर जैसे कि सिस्टर शिवानी उनको सुन के, कभी कोई अच्छी किताब पढ़ के, कभी सिर्फ अपने आप से अपने गुस्से को वर्बलाइज करके. On different days. You it's different verbalize it? things. Oh yes, I do. You talk? I talk so much to myself that once my aunt was visiting us and she was sitting with my grandmother in the other room. I greeted her and then I was in school and then I went back to meet her and she said, has your friend left? I said, which friend? She said, you were talking. So I was verbalizing my thoughts. मैं पढ़ाई भी ऐसे ही करती थी. मैं खुद टीचर बन के पता नहीं बच्चों को पढ़ाते रहती थी और इस वजह से मुझे आता था. And I think a lot नई of चीज people सीखी आपके बारे में. Speaking to yourself, your inner self. आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है? दूसरों को forgive करना या खुद को? आई थिंक इसमें अगर आप मुश्किल कर दो एक को तो दूसरा भी मुश्किल हो जाता है और अगर आप आसान कर दो एक को तो दूसरा भी आसान हो जाता है. अगर आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर सकते आप खुद को भी नहीं कर पाएंगे. और फॉरगिव करना आई थिंक एक डिटर्मिनेशन होती है. कभी कभी वो आपको डिटर्मिनेशन कुछ दिन कुछ समय कुछ महीने लगातार करनी होती है. बट forgiving whether yourself or anyone else is just a determination. That's what I feel. आपको क्या लगता है डेस्टिनी लिखी जाती है या you make your own destiny or it's something in between? Is that not $1 million question? Are we not all thinking about it at all times? You have a perfect answer Oh, with her. absolutely. Let's- She knows After the you answer. answer, we will. She knows the answer. I think on days when I'm in harmony, I'll give you an answer based on that. On days when I feel in harmony, I feel that डेस्टिनी और फ्री विल की अमेलगमेशन होती है. और डेस्टिनी भी हम डेस्टिनी ऐसे नहीं कि किसी ने बैठ के कहीं लिखी है. वो डेस्टिनी भी आपका कर्मा ही होता है और फ्री विल भी अब आगे आपके कर्मा के बारे में ही है कि आपका जो डेस्टिनी है वो आपके कर्मों ने ही लिखी है. और फ्री विल अब आपके पास जो आगे है वो भी आपके कर्मा से रिलेटेड ही है कि आप आज क्या करेंगे. इवन साइंस एट सम लेवल इज प्रूविंग टुडे कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक्चुअली अलग नहीं है. उसमें एक कंटिन्यूटी है. बट द पावर लाइज इन व्हाट यू डू इन दिस मिनट. मुझे नहीं पता एग्जैक्टली फ्री विल है कि नहीं है पर वो फ्री विल आपके इस मिनट के कर्मा पे है. बाय इस मिनट इज दैट मोमेंट इन विच वी ब्लिंक्ड और वी टुक दैट ब्रेथ. इट्स एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई फील. रेस्ट सिस्टर शुड. No, perfect. मतलब जो कर्म हम कर चुके हैं, even if not past life, look at this life. आज जो कर्म किया, that is my free will. जब उसका कल कॉन्सिक्वेंस आएगा, दैट इज माई डेस्टिनी. तो वो जो कॉन्सिक्वेंस है, पर वो भी कॉन्सिक्वेंस मैं नहीं लिखा था, कल लिखा था विद माई फ्री विल ऑफ कर्मा. लेकिन जब वो डेस्टिनी आएगी, अब मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी उसको, वो मेरी आज फ्री विल है. तो माई कर्मा इज माई फ्री विल. आई चूज माई कर्मा. इट्स माई फ्री विल. जब वो वापस आता है मेरे पास, दैट इज माई डेस्टिनी. बट हम जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज माई फ्री विल कर्मा ऑलवेज. तो हम वी कैन नेवर बी विक्टिम्स ऑफ डेस्टिनी.
कुछ लोग अपने भाग्य को ऐसे ही, मेरे भाग्य में ही ऐसा था, मेरे भाग्य में ही ऐसा था। भाग्य तो सिर्फ वो है जो हुआ, उसके साथ आपने आज क्या किया वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। तो पास्ट वापस आता है, प्रेजेंट हम क्रिएट करते हैं, और उस टाइम फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है कि ये वापस आने वाला है। So all three are going hand in hand. And what else do we have but this now? Present, This yeah, moment. power is in the present. Your आज के past, your present, it's all happening now. right Now, now. now. And I think this is the wonderful now moment where I'm going to give the last words to Sister Shivani to say something about puja. Puja, Shakti. She's really Shakti. Now I can understand where first line she said ke the role chose me. Shakti hai. Shakti to discern right and wrong, Shakti to take the right decision, and Shakti to be transparent. ये सारी शक्तियाँ इनके पास है, और इसीलिए ये बड़ी से बड़ी चीज़ को भी छोटा कर लेगी। दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि शक्ति जिस आत्मा के पास होगी ना, और दृढ़ता की शक्ति, डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो अ शक्ति, ये दृढ़ता की शक्ति है। सो वो पेरेंट्स ने, जब पेरेंट्स भी कुछ बोल रहे होते हैं ना, वो कुछ फील कर रहे होते हैं, इसलिए भी बोल रहे होते हैं, एंड फिर वो बोल रहे होते हैं तो वो हमारे अंदर और बढ़ता जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली इट गोज इनटू अ साइकिल। सो यस, पावर, एंड दैट्स व्हाट द डायरेक्टर मस्ट हैव सीन इन द आईज। शक्ति, Shakti ki Devi. Thank you. Thank you, Pooja, for a wonderful conversation. Thank you, Sister Shanti. Shivani. Thank you. Shanti. Om Shanti. You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.